Welcome to all of you for today's webinar Yoga under the Ayush webinar series, the second webinar of yoga scheduled for today. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. टॉपिक का नाम है वेरियस स्लीप डिसऑर्डर्स एंड रोल ऑफ योगा. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स की और उसमें योगा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसके लिए. Now, I take this opportunity to introduce Dr. Ishwar and Acharya and Mrs. Neetu Sharma. Dr. Acharya is having more than 20 years of experience in the field of yoga. Sir did BNYS and MA in philosophy and MPhil in yoga also. He worked as a director of Center Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi. Worked as an in-charge Joint Advisor Yoga under the Ministry of Ayush. He also authored few books on yoga and presently working as a program officer in the MDNIY. इसी तरह से मिस नीतू शर्मा जो योगा थेरेपिस्ट हैं MDNIY में, who is going to demonstrate different type of asanas and pranayams related to the sleep disorders. During the last part of today's session, we are going to provide you 10 to 15 minutes time to clear your doubts from the expert, and it is requested that do not ask any doubt in the middle of the session, but you can send your doubt to chat box. So let us start the session. Over to Dr. Acharya. Please, sir. Thank you very much. Again, I would like to thank the CGHS authorities for giving us an opportunity to be with you today with a new topic, yoga and sleep disorders. योग और स्लीप डिसऑर्डर्स की और योग की जो महत्व स्लीप डिसऑर्डर्स में, इस बात को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा स्लीप फिजियोलॉजी क्या है, नींद का महत्व क्या है, नींद का क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कैसे होता है, और उसके साथ साथ जो स्लीप डिसऑर्डर्स, कॉमन जो स्लीप डिसऑर्डर्स है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि हम सब बेसिक चीज़ समझे, ताकि जो भी चेंजेस हमने करना है अच्छी नींद के लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा. आगे नहीं जा रहा, अच्छा जा रहा. स्लीप इज एन एसेंशियल एंटिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम सब जानते ही है कि नींद के बिना हमारा जिंदगी नहीं. स्लीप इज हैविंग इफेक्ट ऑन डेली फंक्शनिंग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन मेनी वेज. और जिसको ना नींद नहीं आता है शायद वही महसूस कर सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है. Studies suggest that sleep deprivation affects the immune system in detrimental ways. जब भी हम अपना इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, खासकर लास्ट टाइम भी हमने बात किए थे कोरोना के टाइम में भी, जो अच्छी नींद से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है और कई जो डिजीज को प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में मदद करता है. Sleep appears necessary for our nervous systems to work properly. Too little sleep leaves us drowsy and unable to concentrate the next day. And it also leads to the impaired memory and physical performance and reduced ability to carry out the math calculations. मतलब जितना भी cognitive functions है उसमें वो असर करता है.
If sleep deprivation continues, hallucinations and mood swings may develop. Some experts believe sleep gives neurons used while we are awake a chance to shut down and repair themselves. मतलब जितना अच्छा नींद साउंड स्लीप हम कहते हैं उसके हिसाब से नींद आ जाती है तो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसको थोड़ा रिपेयर के लिए मौका मिल जाता है. विदाउट स्लीप न्यूरॉन्स में बिकम डिप्लीटेड इन एनर्जी or polluted with byproducts of normal cellular activities that they begin to malfunction. धीरे धीरे से हो सकता है नींद खराब होने से जो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी कुछ न्यूरॉन्स है वो माल फंक्शन की तरफ बढ़ सकता है. स्लीप ऑल्सो में गिव द ब्रेन ए चांस टू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट न्यूरोनल कनेक्शंस that might otherwise deteriorate from lack of activity. Deep sleep again coincides with the release of growth hormone in children and young adults. आप लोग देखे होंगे कि बच्चे ज़्यादातर दिन में ज़्यादातर मतलब 10-12 घंटे 15 घंटे सोते रहेंगे. So probably that provides a good chance for the baby to develop the growth hormone and उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए वो मदद करता है. Many of the body cells show increased production and reduced breakdown of proteins during the deep sleep. आप जानते हैं proteins are the building blocks needed for the cell growth and for repair of damage from factors like stress etc. Deep sleep may truly be beauty sleep. मतलब स्ट्रेस का कंडीशन में भी हमें जितना अच्छा नींद आएगा इतना वो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए मदद करेगा. Activity in parts of the brain that control emotions and decision making processes है social interaction है is drastically reduced during the deep sleep. This suggests that this type of sleep may help people maintain optimal emotional and social functioning while they are awake. मतलब हमारे जो emotional activity है या social functioning है उसके लिए भी sleep मदद करता है. A study in rats also showed that certain nerve signaling patterns with the rats generated during the day were repeated during the deep sleep. This pattern repetition may help encode memories and the improve learning. खासकर बच्चों में इस तरह की जो होता है तो बहुत बढ़िया रहता है. दूसरा क्या है सर्कैडियन रिदम. Regular changes in the mental and physical characteristics that occur in the course of a day. मतलब circadian is a Latin word for around the day. इसकी जो हम ट्रांसलेट करेंगे. This is controlled by the body's biological clock. हम सब जानते ही है 8 बजते 10 बजते रात को तो नींद आना ही है. This clock called the suprachiasmatic nucleus or the SCN. It's a pair of pinhead sized brain structure that together contain about 20,000 neurons. SCN rests in a part of the brain called the hypothalamus, just above the point where the optic nerves crosses. Again, hypothalamus controls the आपकी autonomous nervous system है, इसमें sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system उसको कैसे ये एक्ट करता है. देखिए लाइट दैट रीचेस photoreceptors in the retina creates signals that travel along the optic nerve to the SCN. Signals from the SCN travel to the several brain regions including the pineal gland which responds to light induced signals by switching off production of the hormone melatonin. The body's level of melatonin normally increases after darkness falls, making people feel drowsy. मतलब ये नींद के फिजियोलॉजी के बारे में हम थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करें. The SCN also governs functions that are synchronized with the sleep or wake cycle, including body temperature है, हार्मोन सेक्रेशन है, यूरिन प्रोडक्शन है, चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर. मतलब हर तरीके से एक नींद में एक फिजियोलॉजिकल रेस्ट की तरफ जाते हैं. वहाँ ऑलमोस्ट ऑल दी एक्टिविटीज आर लगभग बिलो नॉर्मल होता है. By depriving people of light and other external time cues, most people's biological clocks works on a 25-hour cycle after that rather than 24-hour one. But because sunlight or the other bright lights can reset the SCN, our biological cycles normally follow the 24-hour cycle of the sun rather than our innate cycle. जो circadian rhythm है can be affected to some degree by almost any kind of external time cue.
देयर बीपिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक है, क्लैटर ऑफ ए गार्बेज ट्रक, और जो भी बाहर की जो डिस्टरबेंस है उससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। Neurotransmitters also control whether we are asleep or awake by acting on different groups of nerve cells or neurons in the brain. Chemical called adenosine builds up in our blood while we are awake and causes the drowsiness. ये धीरे धीरे से this chemical gradually breaks down while we sleep. हमारा स्लीप में भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसके बारे में हम आमतौर पर जानते ही हैं। खासकर हमारा REM स्लीप है और NREM स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट and the non-rapid eye movement sleep. When we switch into REM sleep, breathing becomes more rapid, irregular and the shallow. जैसे रैपिड नाम ही इंडिकेट करता है, उसमें सारा थोड़ा रैपिड मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। आइज जर्क रैपिडली इन वेरियस डायरेक्शंस, लिम्ब मसल्स बिकम टेम्पररीली पैरालाइज्ड, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, इस तरफ से थोड़ा एक्टिविटी वहाँ बढ़ जाता है। Sleep and wakefulness are influenced by the different neurotransmitter signals in the brain. कुछ लोग सोचते हैं कि कॉफी या चाय पीने से नींद भाग जाता है, like caffeinated drinks. Coffee and drugs, diet pills and decongestants stimulate some parts of the brain and can cause insomnia or inability to sleep. Many antidepressants also suppress the REM sleep. Heavy smokers often sleep very lightly and have reduced amounts of REM sleep. कुछ लोगों को जो भी इस तरह के हैबिट में रहते हैं, उनको 3-4 घंटे में या 1-2 घंटे में ही एक बार नींद से खुल जाते हैं, वो इस तरह की सिम्टम भी हो सकता है। Many people who suffer from insomnia try to solve the problem with alcohol, the so-called nightcap. मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दारू पी लूंगा तो अच्छी नींद आएगा. That is acts like a tranquilizer maybe to some extent for a minimum period, but it is having its own, इसका अपना जो side effects है वो तो है ही है. While the alcohol does help people fall into light sleep, it also robs them of REM and the deeper, more restorative stages of sleep. जो sound sleep हम बताते हैं, sound sleep मतलब कराटे मारने वाला साउंड नहीं बता रहा हूं मैं, जो क्वालिटी के हिसाब से जो साउंड स्लीप है उसको खराब कर देता है अल्कोहल. Instead it keeps them in the lighter stages of the sleep from which they can be awakened easily. जो एबनॉर्मल टेम्परेचर है, हॉट और कोल्ड, वो भी नींद को खराब कर लेता है या डिस्टर्ब कर लेता है. इफ REM sleep is disrupted one night, bodies don't follow the normal sleep cycle progression in the next time we doze off. कभी भी एक बार डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है नींद की साइकिल, हो सकता है कि जो नेक्स्ट डे में उसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है. Instead we often slip directly into REM sleep and go through extended periods of REM until we catch up on this stage of sleep. अभी हम आते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की तरफ. इसमें 3 तरह की डिसऑर्डर्स कैटेगरी पाया जाता है. एक तो प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, अदर्स है रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशन. प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ एन एंडोजिनस डिस्टर्बेंस. सब डिवीजन में इसमें पैरासोमनियस हो सकता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इवेंट्स इन एसोसिएशन विद स्लीप, स्लीप स्टेजेस और स्लीप वेक ट्रांसिशंस, लाइक स्लीप वॉकिंग है, टीथ ग्रीनिंग है, बेड वेटिंग है. इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो प्राइमरी माना जाता है. दूसरा है डिसोमनियास.
characterized by abnormality in the amount, quality or timing of sleep. इसमें इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया है, नार्कोलेप्सी है, इस तरह की कंडीशंस दिखाई पड़ता है. ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, जैसे ही नींद आएगा उनको उसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. सर्कैडियन स्लीप डिसऑर्डर में this is due to an intrinsic defect in circadian pacemaker or its input from the entraining stimuli. This disorder includes jet lag syndrome है, shift work और sleep disorder है, delayed sleep phase syndrome है, like एग्जाम में है, जो नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं उन तरफ की इसमें ये आमतौर पर दिखाई देता है. कॉजेस क्या है? मेजर कॉजेस आर द मेडिकल, साइकोलॉजिकल और द एनवायरमेंटल. मेडिकल कंडीशन में कार्डियक कंडीशंस लाइक इस्कीमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, न्यूरोलॉजिकल में स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, डिजेनरेटिव कंडीशंस है, इस तरह की कॉजेस ये सब प्रॉब्लम को ला सकता है. साइकोलॉजिकल कंडीशन में अगेन डिप्रेशन है, साइकोट्रोपिक मेडिसिन जो ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसफुल और लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स है, शिफ्ट वर्क है, चेंजेस इन द आल्टीट्यूड. अभी मान ली एकदम आप ग्राउंड लेवल से बहुत हाई आल्टीट्यूड में भी चले जाएंगे तब भी नींद में प्रॉब्लम आ जाते हैं. लिविंग नियर फाउल स्मेलिंग एरिया, स्लीप डिप्राइवेशन में occur as a result of an overly warm sleeping environment. मतलब हमारा जो नींद का एनवायरनमेंट भी जो डिस्टर्ब हो जाता है तो तब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है. क्या हो सकता है ये सब प्रॉब्लम से? इनसफिशिएंट स्लीप कैन रिजल्ट इन दी इंडस्ट्रियल एंड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स. अभी मान लीजिए ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं, उसको अचानक थोड़ा ड्राउजीनेस आ जाएगा, वो भी हो सकता है. उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है. इरिटेबिलिटी, डिक्रीमेंट्स इन द डे टाइम वर्क परफॉर्मेंस ओविंग टू फैटिग और स्लीपीनेस, हेडेक है, नौसिया है, जीआईटी प्रॉब्लम हो सकता है, पुअर एपेटाइट है, डायरिया है, यूरिनरी सिस्टम डिसरप्शन हो सकता है. लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है. लॉन्ग टर्म में अगेन ऑल दोस एक्टिविटीज बिहेवियरल एक्टिविटीज में है, साइकोटिक हो सकता है, कई बार ज़्यादा इरिटेशन हो जाते हैं हम नींद कम होने से. क्रॉनिक इंसोम्निया इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, accompanying डेंजर ऑफ सुसाइड है, एंजाइटी है, डिजेबिलिटी है, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओवरऑल जो हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिड्यूस हो जाता है. अभी इसमें दो तीन जो डिसऑर्डर्स है हमारे मेन है, इंसोम्निया है, नार्कोलेप्सी, इस तरह की कंडीशन को थोड़ा डिटेलली देखते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर है इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आना है कहते हैं. इसमें भी वैरायटीज हैं. इट इज़ एन इनेबिलिटी टू गेट स्लीप और स्लीप वेल एट नाइट. मतलब ये नहीं है कि नींद आता ही नहीं है इंसोम्निया में, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो डिप्राइव होता है खासकर इंसोम्निया में. इट इज़ द मोस्ट कॉमन दी स्लीप कंप्लेंट. इंसोम्निया कॉज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस है, हेल्थ कंडीशन हो सकता है, मेडिकेशन है, और अमाउंट ऑफ दी कॉफ़ी और दी इस तरह कैफिनेटेड ड्रिंक हम लेने से भी टेम्पररी इंसोम्निया हो सकता है. Insomnia also can be caused by other sleep disorders or mental health conditions such as anxiety or the depression. Symptoms क्या है? Difficulty falling asleep at night or getting back to sleep after waking during the night, waking up frequently during the night, ये सब इसका symptoms हो सकता है. Sleep is light, fragmented और unrefreshing. मतलब 1 घंटे सो गया, फिर जग गया, फिर आधा घंटे नींद ही नहीं आता है, फिर सो गए. इस तरह की जो फ्रैगमेंटेड स्लीप है वो भी इसकी एक सिम्टम है. वन नीड टू टेक स्लीपिंग पिल्स, नाइट कैप, सप्लीमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट दी स्लीप. इस तरफ से कई लोग दे रिसोर्ट टू द स्लीपिंग पिल्स. स्लीपीनेस एंड लो एनर्जी ड्यूरिंग द डे,
मतलब रात को ढंग से नींद नहीं आए तो ऑब्वियसली इंसोम्निया हो गया, तो नेक्स्ट डे के हैं वो ड्राउजी फील हो सकता है, लो एनर्जी फील हो सकता है, इस तरफ से कंडीशंस आता है। स्लीप एपनिया, the next condition is, most common condition is common sleep disorders in which breathing temporarily stops during the sleep due to blockage of the upper airways. These pauses in breathing interrupt sleep, leading to many awakenings each hour. मतलब disturbed sleep ही कह सकते हैं हम। While most people with sleep apnea don't remember these awakening, they feel the effects in other ways, exhaustion during the day, irritability है, depression है, और decreased productivity। Sleep apnea is a serious and potentially life threatening sometimes disorder है ये। Losing weight है इसका, elevating the head of the bed and sleeping on your side can also help in causes of the mild to moderate sleep apnea। मतलब ओबेसिटी, वेट ज़्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए लूजिंग वेट है, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड, मतलब बेड हेड साइड को थोड़ा ऊंचा करने से, और स्लीपिंग ऑन योर साइड कैन आल्सो कैन हेल्प इन द केसेस ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया। सिम्टम्स अगेन लाउड क्रॉनिक स्नोरिंग हो सकता है, फ्रीक्वेंट पॉजेज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, गैस्पिंग है और चोकिंग ड्यूरिंग द स्लीप, feeling unrefreshed after waking up with shortness of breath, chest pain, headache, nasal congestion, or a dry throat। दूसरा जो प्रॉब्लम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, is a sleep disorder that causes an almost irresistible urge to move your legs or arms। मतलब झटका लेते हैं हम, नींद में जो झटका लेना है उसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। The urge to move occurs when you are resting or lying down and is usually due to uncomfortable, tingly, aching or the creeping sensations। Uncomfortable sensations deep within the lungs accompanied by a strong urge to move them। मतलब इस तरह की we can say uncontrolled movement of the legs or the arms or the other body parts। Narcolepsy, again there is another problem, sleep disorder that involves excessive uncontrollable daytime sleepiness। मतलब जो दिन में ज़्यादा सोते हैं या नींद आता है उनको नार्कोलेप्सी कहते हैं। Common signs and symptoms includes seeing or hearing things when you are drowsy or starting to dream before you are fully asleep, suddenly feeling weak or losing control of muscles, dreaming right away after going to sleep or having intense dreams, feeling paralyzed or unable to move when waking up or dozing off। मतलब बिल्कुल ही वो एक तरह जो नींद की स्थिति आती है नार्कोलेप्सी में, तो वो बिल्कुल एक तरफ से एक पैरालाइज्ड का फीलिंग सेंसेशन आता है। अभी हम ये तो मेन जो स्लीप डिसऑर्डर्स उसके बारे में बताया हमने। अभी क्या करने से हम सेल्फ हेल्प फॉर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। फर्स्ट स्टेप to overcoming a sleep problem is identifying and carefully tracking symptoms and the sleep patterns। हमारा स्लीप पैटर्न क्या है उसके बारे में थोड़ा सोचें। कीप ए स्लीप डायरी, improve sleep hygiene and daytime habits, keep a regular sleep schedule, going to sleep and getting up at the same time each day। मतलब अपना एक शेड्यूल बनाएं सोने का और सोकर उठने का। सेट असाइड इनफ टाइम फॉर स्लीप, मतलब खासकर एटलीस्ट 8 hours ईच नाइट इन ऑर्डर टू फील गुड एंड बी प्रोडक्टिव। जो स्लीप एनवायरनमेंट है, जो बेडरूम है, उसको डार्क, कूल एंड क्वाइट रखे और टर्न ऑफ टीवी, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, जितना डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है उसको उससे दूरी रहे। अभी हम आते हैं योगा एंड स्लीप, हाउ योगा कैन इम्प्रूव द स्लीप। और कई इसमें रिसर्च भी हुई है, इसमें खासकर जो ये पाया गया है जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको हम
इंप्रूव करने में योगा मदद करता है. The yoga group reported a significant improvement in the overall sleep quality, sleep duration and sleep efficiency measured by the percentage of time in bed that they were actually asleep. ये पाया गया है. कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन लाइक रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इन डेली रूटीन कैन इंप्रूव स्लीप क्वालिटीज which in turn will improve physical function and cognitive function, thereby improving the quality of life in the elderly. Self-reported sleep was improved by all mind-body treatments. Among them, yoga, relaxation, tai chi was the more important. इसमें भी जो योगा प्रैक्टिस इज वेल सूटेड टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग थेरेपीज एंड टू एड्रेस स्लीप प्रॉब्लम्स इन ए मोर होलिस्टिक वे. जैसे मैंने बताया कि जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव करने में या कुछ इंसोमिया इस तरह की जो स्लीप डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने में योग मदद करता है. इसमें खासकर जो हम ये कहते हैं कि एक तो फिजिकल पार्ट हो गए योग की नींद के हिसाब से. दूसरा है हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न उसको इम्प्रूव करने में प्राणायाम का या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. दूसरा जो ओवरऑल रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन प्लस जो अदर रिलैक्सेशन टेक्निक, खासकर हम इसमें योग निद्रा का जो सलाह देते हैं. हालांकि आज के वीडियो में हम दिखा नहीं पाए बिकॉज ऑफ द साउंड प्रॉब्लम, वो आप तक पहुंच नहीं पाता है. जो हम कहते हैं कि अराउंड 45 मिनट्स ऑफ योग निद्रा विच इज रिलैक्सेशन टेक्निक पर से बट विथ योगिक कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल्स. जो बंदा योग निद्रा कर लेता है 45 मिनट्स तक का, वो he gets the effect of 3 to 4 hours of sound sleep. मतलब जितना 3 से 4 घंटे का जो साउंड स्लीप में जो इफेक्ट मिलता है, इतना ही इफेक्ट आपको 40 to 45 मिनट्स ऑफ जो योग निद्रा करने से मिल जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग कम सोते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना क्वालिटी ऑफ स्लीप उसको मिल जाता है उसके ऊपर डिपेंड है उसका जो नेक्स्ट डे कैसे बीत जाता है. आमतौर पर कुछ लोग जो योगा प्रैक्टिशनर, सीरियस योगा प्रैक्टिशनर्स हैं या वी कैन से योगीज, दे स्लीप वेरी लेस, मतलब 2-3 घंटे ही सोते हैं, लेकिन दे कंपनसेट दैट क्वालिटी ऑफ स्लीप विद द योगिक टेक्निक्स एंड द योगिक मेथड्स. हालांकि उसके साथ साथ हमारे जो डाइट हैं, हमारे जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ योगिक आसनास, योगिक सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, इस तरफ के वो करने से हमारे जो स्लीप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में वो बहुत मदद करता है. अभी इसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस दिखाए हैं विच कैन हेल्प यू टू गेट ए क्वालिटी ऑफ स्लीप. हालांकि जो स्लीप डिसऑर्डर के हिसाब से आप देखेंगे तो दैट यू हैव टू कंसल्ट ए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड योगा थेरेपिस्ट या योगा फिजिशियन को कंसल्ट करने से ही आपको पर्टिकुलर क्या क्या प्रैक्टिसेस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करना है वो बता देगा. इसमें हम कुछ अभी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस उसको हम थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे. आवाज नहीं आ रहा है ना आपके पास? आपके पास आवाज आ रहा है?
मेरा नहीं, इनका। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रेगुलर बेसिस पर हम आधा घंटे भी योगा की प्रैक्टिस करते रहें तो 4-5 घंटे भी हमें साउंड स्लीप मिल जाए वो बहुत काफ़ी है, because we compensate those rest of the 3 hours with चैंटिंग्स है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक से हम उसको पूरा कर लेते हैं, ताकि जो साउंड स्लीप या क्वालिटी ऑफ स्लीप कम होने से आपको जो प्रॉब्लम आ सकता है उसको वो प्रिवेंट कर लेता है योग की टेक्निक्स। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा कि जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं योग में उसको हम बहुत कंसंट्रेट होकर करते हैं, मन से करते हैं। उसके साथ साथ ब्रीदिंग का भी हम ब्रीदिंग को भी कंसंट्रेट करते हुए ही हम ये सब प्रैक्टिसेस को करते हैं। सो दैट हेल्प्स टू द ब्रेन टू रिलैक्स and improve the quality of sleep. दूसरा एक बात है कि जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज में भी या फिजिकल जितना भी फिजिकल एक्टिविटी को कंसंट्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली नींद का क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो भी लेबरर है या फार्म में काम करने वाला है या इंडस्ट्री में काम करने वाला है या बहुत मेहनत करके काम करने वाला है उसको नींद की गोली लेने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जिंदगी में नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे get into such physical exercises, physical activity, which makes them to sleep in time and provide a good sleep also, quality of sleep. Next practice, Padahastasana. Next, Ardha Chakrasana. फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कंटिन्यू करेंगे इतना आप उसको मैनेज कर पाएंगे कोई भी प्रैक्टिस। नेक्स्ट कम टू द सिटिंग पोस्चर्स, उत्तान मंडूकासन। दोनों पैर को हिलाए, पूरा थोरैसिक रीजन आपका एक्सपांड हो जाता है इस आसन से। नेक्स्ट, सरल शशांकासन।
इसमें वेरिएशन बता रहे हैं। फर्स्ट वाला प्रॉपर पोजीशन है शशांकासन की। इसमें अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हो आप, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। धीरे से वापस आए। ये थोड़ा एडवांस्ड शशांकासन है। पूरा शरीर को जमीन पर लाने का कोशिश। अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोस्चर। धीरे से वापस आए। मैं थोड़ा रन थ्रू कर रहा हूँ उसको, जिसे अगेन वन ऑफ द रिलैक्सेशन पोजीशन मकरासना। stretch the whole body। भुजंगासन। मकरासन में अगेन विश्रांति। कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है मकरासन करने में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो बालासन की ये स्थिति में भी वो रिलैक्स कर सकते हैं। हालांकि हम डीप स्लीप में भी इस तरह की पोजीशंस लेते हैं ऑटोमेटिकली विदाउट आवर नॉलेज। और पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। ये है सेतुबंध आसन। नेक्स्ट पवन मुक्तासना। जिनको गर्दन में दर्द है या बैक में दर्द है तो वो लोग इतना ना करें, जो पहले वाले दिखाए वही करें।
शवासन में रिलैक्स करें। एक्चुअली जो योग निद्रा का थोड़ा हिस्सा इसमें दिखाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इसमें कमेंट्री आपको सुनना चाहिए। कंटिन्यूसली कमेंट्री मिलते रहेंगे तब आप जाके इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब में जाकर आप योग निद्रा का वो कम से कम सुन कर एक बार करने के लिए कोशिश करिए, है ना। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। यू विल रियली एंजॉय दैट पर्टिकुलर सेशन। लेकिन इसमें कोशिश करिए कि कान में कुछ लगा के ही सुनने के हिसाब से, ताकि जो बाहर का डिस्टरबेंस है वो ना आए। नेक्स्ट कम टू दी प्राणायाम सेशन। नाड़ी शोधन है। आप लोग तो अभी इसके बारे में तो जानते ही हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। दूसरा एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है नींद के लिए, भ्रामरी प्राणायाम। जिसको नींद का प्रॉब्लम है या क्वालिटी ऑफ स्लीप कम है, उनको सोने से पहले भी ये प्रैक्टिस 7-8 बार, 7 से 9 बार करके राउंड करके फिर सो सकते हैं, तो नींद में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। भ्रामरी प्राणायाम। हेलो। हेलो। हमारे बेनिफिशियरी की तरफ से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, जिनमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में सर से आचार्य जी से पता करना चाहता हूँ। एक 87 ईयर्स ओल्ड बेनिफिशियरी हैं, वो रात में सो नहीं पाते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज उन्होंने मालूम की हैं, तो प्लीज सर रेमेडीज उनको बताइए, कुछ स्पेशल जो 87 ईयर्स ओल्ड के लिए होती हैं। क्या एज बताएं? 87 ईयर्स ओल्ड। देखिए, ऑब्वियसली एज के हिसाब से नींद का क्वालिटी एंड नींद का क्वांटिटी भी कम होना जायज़ है। उसमें शायद बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि जैसे जो हमने जो प्रैक्टिस बताया आपको, वो थोड़ा आधा घंटे कम से कम कोशिश करिए। उसके साथ साथ योग निद्रा का जो मैंने बताया, कम से कम यूट्यूब से देखकर अभी करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ आप मतलब अदर देन योगा भी थोड़ा मैं सलाह देना चाहूँगा नेचुरल तरीके से। हेड, क्राउन ऑफ द हेड और पैर की तलवे नीचे के हिस्से, उसमें थोड़ा सोने से पहले तेल मल लीजिए, रब करिए, ऑयल एप्लीकेशन टू द क्राउन ऑफ द हेड एंड द सोल ऑफ द फुट, उसको ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक हॉट फुट इमर्शन होता है, हॉट फुट इमर्शन मतलब एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर दोनों पांव घुटने से थोड़ा नीचे तक इमर्स करिए इसमें। इट शुड बी बेरेबल हॉट, मतलब गुनगुना नहीं, गुनगुना से ज़्यादा हॉट होना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसमें रखने से भी, इसकी जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो सर्कुलेशन टुवर्ड्स दी लेग्स विल इम्प्रूव और ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सो अब ऑटोमेटिकली थोड़ा ड्राउजीनेस होगा, और ये नेचुरल तरीके को रेगुलर बेसिस पर करते रहने से आपको नींद का क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ने का असर है। इतना करिए।
एक Thank you. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो कि मैं भी अक्सर पूछना चाहता था, रिलेशन जो ड्रीम्स और स्लीप में क्या रिलेशन होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पेशेंट भी मालूमात करते हैं इसके बारे में कि जो मुझे बहुत ड्रीम्स आते हैं, तो ये क्वेश्चन आया है, प्लीज आचार्य जी इस पे कुछ बताएं, रोशनी डालें। इसमें देखिए डायरेक्टली योग तो शायद इसमें ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं है, जितना सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ मेमोरीज हम कहते हैं कि संस्कारास होता है, योगिक भाषा में कहेंगे तो संस्कारास, वो इस तरह की जितना भी कुछ इमोशंस होता है, दबे होते हैं, वो शायद हम कहते हैं कि ड्रीम के रूप में हो सकता है। कई बार ड्रीम ऐसे भी होता है कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड भी हो सकता है। जो योग निद्र करने से हम वहाँ जो एक योगा टीचर के द्वारा आप उसका मदद लेंगे, तो जिस तरह की कुछ आपका इमोशनल या इस तरह की मेंटल इश्यूज है वो उनको बता दे, तो वो सबकॉन्शियस लेवल से उसको हटाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ जो भी हम कमेंट्री देंगे उस तरफ की कमेंट्री देंगे ताकि जो सबकॉन्शियस लेवल पर जो भी प्रॉब्लम दबे पड़े हैं उसको निकालने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, और इसमें लाभप्रद भी होगा। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो कहना चाहूँगा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ड्रीम के बारे में इसमें योग बहुत ज़्यादा मददगार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन योग निद्रा इज सर्टनली गोइंग टू हेल्प इन दैट वे। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है स्नोरिंग का, जो आजकल मेरे ख्याल में सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्नोरिंग की। कहते हैं आवाजें आती हैं, खराटे आते हैं, तो इसके बारे में सर कुछ सजेस्ट करेंगे? काफी सारे लाभार्थी ने ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, इसमें जो खासकर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक और अप टू लंग्स तक का जो भी जो स्पेस है उसको हमें ठीक रखना होगा। इसके लिए हमारा जो सलाह ये है कि जो अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट आप जलनेति सूत्रनेति करें, कुछ रेगुलर बेसिस पर 10-15 दिन रेगुलर बेसिस पर करें, उसके बाद हफ्ते में एक बार करें, तो इस तरह की जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है। लेकिन इट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ओनली, आप अपने हिसाब से ट्राई मत करिए, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है कि जो आसन का ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए? क्या हम कुछ सेलेक्टिव आसन करें या सभी हमें करना जरूरी है? और मैक्सिमम एफिकेसी के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? जो मैक्सिमम एफिकेसी के लिए जो बेस्ट टाइम होगा सुबह का टाइम होता है, ब्राह्मी मुहूर्ती कहते हैं हम। मतलब अभी जो सर्दी का टाइम है नॉर्थ इंडिया में, खासकर जो 5 से 6 या 6 से 7 का जो वो टाइम बिफोर 8 आप सोच के चलिए, वो जो करेंगे वो हो सकता है। दूसरी बात जो टाइमिंग की बात बता रहे हैं आप, don't go for the number of asanas to be completed in 1 hour, उसके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे, आसन के बारे में पतंजलि क्या कहते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आसन में कोई भी प्रैक्टिस में स्थिरता चाहिए और वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपको डिस्कम्फर्ट फील ना करा दे। जो भी आसन है, अब मान लीजिए आप पद्मासन में बैठे हो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भी आप बैठते हो, तो इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट डिस्टर्ब योर दिस थिंग्स मेंटल कंडीशन। मतलब अरे यार उठ के मैं खड़े हो जाऊं या इस आसन से मैं वापस आ जाऊं, उस तरह की सेंसेशन होना नहीं चाहिए। आपको 1 मिनट है, 30 सेकेंड है, कोई बात नहीं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे से आप उसको टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य मतलब एफर्टलेस होना चाहिए जो भी प्रैक्टिस है। आप भुजंगासन कर रहे हो या शशांकासन कर रहे हो, इवन शवासन कर रहे हो, शवासन में आपको लगता होगा कि बहुत एफर्टलेस है, ऐसा नहीं एफर्टलेस है, वो एफर्टलेस हो सकता है प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इट ऑन रेगुलर बेसिस।
इसलिए ऐसे कोई टाइमिंग के बारे में इवन इन टेक्सचुअल रेफरेंस में हमें ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये है कि स्थिरम सुखमासनम एंड प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, ये तीन चीज स्थिरता, सुखता और प्रयत्न शैथिल्य, ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन आया है, सडनली वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, अनेबल टू स्लीप फॉर नेक्स्ट 1 or 2 hours, हाउ टू ओवरकम? वो तो हमने जो बताया था, जो प्रॉब्लम्स इट कम्स अंडर द वेरियस स्लीप डिसऑर्डर्स ओनली। इसमें अगेन मान के चलिए, वो तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट का सलाह लेंगे ही, या मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स या बाकी आयुष डॉक्टर्स का भी आप सलाह ले सकते हैं। और इसमें आपको मान लीजिए दोबारा नींद नहीं आ रहा है, अगेन यू कैन रिसोर्ट टू सम भ्रामरी प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग ही करिए बैठ के, या सोते सोते भी कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इस तरह की प्राणायाम भी इन बिटवीन आप करने से हो सकता है कि आप दूसरा जो नींद का साइकिल है उसको जल्दी पा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है कि स्लीप पैटर्न जो है, स्लीपिंग पैटर्न है, वो कौन सा बेस्ट होता है? स्लीपिंग पैटर्न बेस्ट स्लीपिंग पैटर्न? नहीं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ REM स्लीप एंड दी NREM स्लीप, दोनों हमें चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल इट एज ए हेल्दी स्लीप और दी साउंड स्लीप। दोनों मिलाकर ही आप थोड़ा इसको स्लीप साइकिल के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा आप लिटरेरी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर अस। सर एक क्वेश्चन है, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे हेल्पफुल हो सकता है? कैसे भस्त्रिका प्राणायाम? जो भस्त्रिक, खासकर मैंने बताया जो इसमें भ्रामरी प्राणायाम बताया, जो सज्जन पूछ रहे शायद कि भस्त्रिका के बारे में। भस्त्रिका प्राइमरली हाइपर वेंटिलेशन प्रैक्टिस, जितना भी हाइपर वेंटिलेशन प्रैक्टिस है दैट गिव्स दी एग्जॉशन इफेक्ट टू द बॉडी। जितना एग्जॉशन होगा इतना नींद आएगा, और जितना एग्जॉशन करेंगे आप, या कपालभाति करेंगे या भस्त्रिका करेंगे, जितना ज़्यादा साइकिल करेंगे इतना नींद का क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। ये जो आसन बताए गए हैं, एक लाभार्थी ने मालूम किया है कि जो आसन बताए गए हैं, वो इन आसनों में से बीपी का पेशेंट कौन से आसन नहीं कर सकता? कोई ऐसा स्पेसिफिक आसन तो नहीं है जितना इसमें? भी जो दिखाया है वो बीपी की, जो हाइपरटेंशन या बीपी का पेशेंट ही कर सकता है, ऐसे ही मतलब सब लोग कर सकते हैं, ऐसे ही आसन हमने बताया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। एक लाभार्थी ने मालूम किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसे सोना चाहिए? सिंपली उन्होंने पूछा है कैसे सोना चाहिए। देखिए, ऑफ कोर्स डिफरेंट इसमें डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट इसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। हालांकि योग के बारे में पूछेंगे तो ऐसे कहीं रेफरेंस हमें नहीं मिलता है कि भाई कैसे सोना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ लोगों का स्लीपिंग पैटर्न में, मतलब नेचुरल, इसमें भी हम अपने आप में करवट लेते हैं, पेट के बल भी लेट जाते हैं हम, नींद में ही पलट जाते हैं, सो जाते हैं। खासकर हम कहते हैं कि जो मतलब नेचुरोपैथी के हिसाब से हम ये कहते हैं कि पेट की बल लेटना अच्छा माना जा रहा है। अच्छा माना जा रहा है किस, इसमें इतना उसका साइंटिफिक प्रूफ तो है ही नहीं, लेकिन मैं अपना ये मैं राय दूं कि आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन है जिसमें आपको अच्छा नींद आ जाए, वही दैट इज द बेस्ट पोजीशन व्हाट आई कैन से। अच्छा, एक पेशेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, सलाह दी है उन्होंने, स्लाइड्स प्रोजेक्टेड शुड बी सेंड बाय ईमेल टू ऑल अटेंडिंग द वेबिनार। ये सारा वेबसाइट पर है, आफ्टर दीज थिंग्स वी आर अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट, वहां से ले ही सकते हैं। एवरीबॉडी कैन सी द ऑन वेबसाइट। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Attending the webinar. I thank Dr. I.N. Acharya ji for wonderful presentation on this topic. It is a benefits. क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, etc. I also thank Ms. Neetu Sharma for his elegant demonstration of asanas. Hope all the participants benefited from this effort. I thank you all for hearing patient. Thanks to all the technical team. Thank you all and all.
Thank you. Bye. Sir. We will meet again the next webinar series on second and fourth Tuesday of the month. हाँ क्वेश्चन टॉपिक है वो ऐसे क्या लिखा?